Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the structural elucidation of the quinine, which is also an alkaloid, and it is generally been obtained from a plant, that is the hemlock plant. So the alkaloid, that is the quinine, which is naturally been obtained from the hemlock plant, as you can see in the diagram also. And here is the structure of the quinine. देखो, जब कभी भी आप स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन याद करेंगे किसी भी कंपाउंड की, वेदर इट इज द एल्कलाइड और टर्पिनाइड इन द प्रीवियस केस, आपको सबसे पहले रफली अपने पेज के ऊपर कोनिन की स्ट्रक्चर आपको बना लेनी है। जैसे आज के लेक्चर में हमने साइड में कोनिन की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है। एग्जामिनेशन में आप इस स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं करेंगे, आप ये कहीं भी रफली लास्ट पेज के ऊपर आप ड्रा करके रख सकते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए ही तो आप जो स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको आप इजीली लिख पाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक बता दें आपको कि कोनिन है क्या, कहां से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। तो कोनिन इज एन एल्कलाइड which generally been occur in the hemlock plant, and it was the first alkaloid which has been synthesized due to their simplest structure। जैसे हमने साइड में स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाई रखी है कि इसके अंदर एक तो पिप्रिडिन रिंग होता है और उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिन। यही हमें डिटरमाइन करनी है हमारे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वन, it was first isolated in the year 1827 and their structure been determined by the scientist, that is the Hofmann, in 1855। और जो आपका कोनिन है, it is a colorless liquid, it is a poisonous liquid, it is an oily liquid, it has been soluble in water and it has very burning taste, और इसका burning taste होता है। अब जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के, वो पॉइंट आपके कॉमन ही रहते हैं, whatever may be the nature of the compound। Similarly here, the basic points through which we can determine the structure of the quinine, out of these the first point is the determination of the molecular formula। During the determination of the molecular formula, we must have the knowledge what are the different type of atoms which are present in the given compound and what is the percentage composition of these element, and by using the mole concept finally we can determine the molecular formula। Means after obtaining the pure alkaloid from the natural source, that is the hemlock plant, its molecular formula is determined by qualitative analysis। By the qualitative analysis we determine the nature of the element, and then by quantitative analysis we determine the percentage of these different elements, as the molecular formula of the quinine is C8H17N, means it contains the three type of atoms, that is the carbon, हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने अगर ये कंपाउंड दे दिया जाए, ये फार्मूला दे दिया जाए और आपको कहें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो, रिवर्स क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहे हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, बड़े ध्यान से देखना कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, what is the percentage of nitrogen। फार्मूला आपको पहले से पता है कि द फार्मूला ऑफ द कोनिन इज C8H17N। यह स्ट्रक्चर का पता हो तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। जैसे कार्बन को आप कैसे लिखते हैं, बोलो 612, दैट इज द मास ऑफ कार्बन, दैट इज द 12। हाइड्रोजन को आप H11 लिखते हैं, दैट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को आप 740 लिखते हैं, दैट इज द मास ऑफ द नाइट्रोजन। सो व्हाट इज द टोटल मास। टोटल मास अगर आप देखें कोनिन का तो 12 8 जा 96, दैट इज द टोटल मास ऑफ कार्बन इन द कोनिन, प्लस 17 1 जा 17, दैट इज द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, और here is the 14, that is the only one nitrogen। so the total mass is 6 plus 4 10, 7 17, 1 10 12 127, that is the total mass, total molar mass, total molar mass of the quinine। So what is the percentage of carbon? Percentage of carbon means what is the amount of carbon? The amount of carbon is 96 gram। If the total molar mass is 127, if the total mass is 100, then what is the percentage? So that is the percentage of carbon। Similarly for the hydrogen percentage, 17 the total mass of the hydrogen divided by total molar mass of the compound multiplied by 100, so that is the percentage of hydrogen। Similarly percentage of nitrogen, 14 is the mass of nitrogen
divided by total mass of the compound, that is a 127, multiplied by 100. So that is the percentage of the nitrogen in the given compound. So that is very basic question which been generally asked in your competitive exam. कि मोलिकुलर फार्मूला दे देते हैं और उसमें ये कह देंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या किसी और भी कोई फार्मूला देके इस टाइप से परसेंटेज आपसे निकलवा सकते हैं। तो इस बेसिक बात को भी आप भूले नहीं जो हम साथ के साथ आपको बता रहे हैं। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। आमतौर पे करते क्या है हम, ये तो हमने रिवर्स क्वेश्चन पूछा आपसे, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअल हम करते क्या है, हम सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और उससे हम पहले एक्स्ट्रा एलिमेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो मीन्स सबसे पहला काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट। एक्स्ट्रा एलिमेंट मीन्स द एलिमेंट अदर देन, बोलो कौन, आपके कार्बन हाइड्रोजन से अलावा कौन एलिमेंट है, ऑल कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा एलिमेंट, दैट इज द नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, these all are come in the category of the extra element। जैसे हमें पहले से ही पता है कि जो कोनिन है इसका फार्मूला अभी आपने देखा C8H17N है, तो इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। एक्स्ट्रा एलिमेंट इज द नाइट्रोजन, अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है लाइक द सल्फर, हेलोजन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है हम उसको डिटरमाइन ही कैसे करते हैं, थोड़ा बेसिक रिव्यू आपको दे दें। आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जाके देखो आपके पास एक बोतल आप देखेंगे, बोतल के अंदर आपको सोडियम मिलेगा, उसके अंदर बिग पीस होते हैं सोडियम के, दे आर जनरली बीन डिप्ड। सोडियम को आप किस में डिप करके रखते हैं, द केरोसिन ऑयल लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि जो सोडियम होता है ये मॉइस्चर के साथ आपकी फायर लग जाएगी, उसके अंदर आग लग जाती है, बिकॉज दे आर रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। तो सोडियम को आपने बाहर निकाला, जैसे आपको यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर देखो ये सोडियम का पीस आपको दिख रहा है, इसमें से स्मॉल आप स्पेचुला की हेल्प से देखो आप इसको ऐसे कट कर देते हैं, कट करके आप इसको दूसरे फिल्टर पेपर के ऊपर आप इसको ड्राई करते हैं, क्या करते हैं इसको ड्राई, और स्मॉल पीस लेके और फिर उसको आप डाल देते हैं आपकी फ्यूजन ट्यूब के अंदर। देखो एक फ्यूजन ट्यूब होती है आपके पास, फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, ये स्मॉल पीस आपने देखो सोडियम का ऐसे डाल दिया और फिर उसको क्या करते हैं आप टोम की हेल्प से, देखो ये टोम है यहाँ पे, आप इसको स्लाइट हीट करते हैं तो ये ग्लो कर जाएगा, देखो ऐसे ग्लो कर जाता है। बोलो ट्यूब के अंदर क्या करेगा, आपकी फ्यूजन ट्यूब होती है उसके अंदर ये नीचे ग्लो कर जाएगा। देखो ये आपकी बोलो कौन है, दैट इज अ स्मॉल ट्यूब, दैट इज अ फ्यूजन ट्यूब। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर जो गिवन कंपाउंड होता है, जैसे एल्कलाइड है आपका, जैसे कोनिन है, हमें क्या पता कोनिन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें नहीं पता, तो उसको कैसे पता हम लगाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या डाला, ये ऊपर से आपने फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपका गिवन कंपाउंड डाल दिया, उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर जिसके अंदर पहले से बोलो कौन था, सोडियम, आप उसको थोड़ा मेल्ट कर चुके थे। उसके बाद आपने कंपाउंड डाला, डालने के बाद आप दोबारा हीट करते हैं, आप इतना ज्यादा हीट करते हैं कि आपकी जो फ्यूजन ट्यूब है ये बिल्कुल रेड हो जाएगी बॉटम से, क्या हो जाएगी, इट बिकम्स रेड, बिल्कुल रेड हो जाएगी। जब ये रेड हो जाए तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेके उसके अंदर देखो आपने पहले से ये वाटर डाल रखा होता है, वाटर ऊपर आप ये वायर गाज लेते हैं या आप कोई और सब्सटेंस भी ले लेंगे या कोई ग्लेज आप ले सकते हैं, ताकि जैसे ही आप इसमें देखो ये आप क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, दैट इज अ फ्यूजन ट्यूब। देखो ये फ्यूजन ट्यूब है, क्योंकि फ्यूजन ट्यूब के अंदर हो सकता है सोडियम कुछ अभी अनमेल्टेड फॉर्म के अंदर, अनरिएक्टिव फॉर्म के अंदर, जैसे आप वाटर में डालें एकदम से आग लग सकती है, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि हम ऐसा ना होने दें। हम अच्छे से देखो यहाँ पे रेड हीट तक देखो जो हमने इसको हीट किया है, ताकि आपका सोडियम पूरी तरह से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाता है। उसके बाद आपने फ्यूजन ट्यूब को इसके अंदर डाला, उसके बाद नेक्स्ट देखो आप देख पा रहे हैं कि अपने आप, क्योंकि काफी हॉट होती है आपकी फ्यूजन ट्यूब, वो अपने आप ही देखो ब्रेक डाउन हो जाती है। आपने देखा नेक्स्ट चाइना डिश के अंदर देखो किस टाइप से ब्रेक हो चुकी है आपकी जो फ्यूजन ट्यूब है, देखो इसके काफी पीसेस हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आप फ्यूजन ट्यूब को क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपकी फ्यूजन ट्यूब है, चाइना डिश है, वाटर के अंदर है, आप इसको नीचे से हीट करते हैं। नाउ यू विल बॉयल दैट होल ऑफ द कंटेंट, इसको आप काफी हीट करते हैं। हीट करने के बाद आप इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो ये नीचे आपके पास यहाँ पे देखो इसके अंदर जो भी लिक्विड आएगा, देखो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इकट्ठा कर लिया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज द SE, दैट इज कॉल्ड एज द सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसे आप सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसी की हेल्प से हम एक्स्ट्रा एलिमेंट का पता लगाएंगे। जैसे सोडियम का हमें पता है, सोडियम का ही हम आपको स्पेशली यहाँ पे बताएंगे। देखो आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपने क्या डाला, सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो भी आपने बनाया था उसका स्मॉल पार्ट आपने लिया, नीचे देखो स्मॉल पार्ट आप ले लेते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट का। क्लियर सॉल्यूशन होता है, क्लियर सॉल्यूशन।
उसके बाद आपने इसमें क्या डाला, फेरस सल्फेट आपने डाला, फिर आपने क्या किया, इसको देखो हीट करते हैं, हीट करने के बाद फिर क्या डाला आपने इसमें H2SO4 डालते ही साथ उसके बाद आपने क्या देखा, Prussian blue color is obtained. If the Prussian blue color appears in the test tube, what it shows that it clearly shows that the given compound has the nitrogen as an extra element. आपके नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे प्रूशियन ब्लू कलर की बजाय, दैट इज द प्रूशियन ब्लू कलर, ये आप ध्यान रखिए, प्रूशियन ब्लू कलर की बजाय अगर यहाँ पे ब्लड रेड कलरेशन आ जाता, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आएगा, फिर आएगा ब्लड रेड कलरेशन व्हिच शोज बोथ एक्स्ट्रा एलिमेंट आर प्रेजेंट, दैट इज द नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर प्रूशियन ब्लू कलर आए सिर्फ तो मींस ओनली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नो प्रूशियन ब्लू कलर व्हाट इट मींस नाइट्रोजन इज अब्सेंट। फिर सल्फर के लिए हम टेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट सल्फर के लिए, उसमें भी आप इसी टाइप से क्या करेंगे, आप सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं ट्यूब के अंदर और उसके बाद आप क्या डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड आफ्टर दैट लेड एसिटेट, और आपके ब्लैक पीपीटी आ जाए तो व्हाट इट शोज कि आपके सल्फर इज प्रेजेंट। बोलो कौन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी आप करते हैं कि सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लें, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेके आप उसमें क्या डाल देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और डालने के बाद अगर उसके अंदर आपके वायलेट कलर आ जाता है तो व्हाट इट शोज, सल्फर इज प्रेजेंट। तो हम एक्स्ट्रा एलिमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन मेनली हम आपको यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में ही बताना था, क्योंकि जितने भी आपके एल्केलाइड हमने डेफिनेशन पढ़ा था, दे आर दी रिजर्व ऑफ नाइट्रोजन, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस का कैसे पता चले वो आपको यहाँ पे बताया गया। इसी टाइप से आप हैलोजन्स का भी पता लगा सकते हैं कि आप कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या डालते हैं आप, सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में आप क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, फिर आप डाल देते हैं AgNO3, AgNO3 के डालते ही साथ व्हाइट पीपीटी कम्स आउट, आपकी क्लोरीन इज प्रेजेंट, लाइट येलो पीपीटी कम्स, ब्रोमीन इज प्रेजेंट, डार्क येलो पीपीटी कम्स, आयोडीन इज प्रेजेंट। तो इस टाइप से आप हैलोजन्स के बारे में भी पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ कि नाइट्रोजन तो हमने पता लगा लिया कि प्रूशियन ब्लू कलर आ गया, लेकिन नाइट्रोजन कौन सा है, कौन सा नाइट्रोजन है यहाँ पे, मींस हम ये देखेंगे आगे जाके जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला के बारे में आपको बताया कि हम मोलिकुलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मींस आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट का पता लगाते हैं, जैसे कार्बन के लिए लीबेक टेस्ट होता है, हाइड्रोजन के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए आपके और भी टेस्ट होते हैं। जब आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करते हैं, क्या कौन सा होता है, डुमास मेथड होता है, आपके जेल्डाल्स मेथड है। तो मींस देयर आर डिफरेंट methods by which we can determine the percentage of the element in the given compound, और फिर परसेंटेज आने के बाद आप इजीली मोलिकुलर फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। और मोलिकुलर फार्मूला को डिटरमाइन आपने कर लिया, मोलिकुलर फार्मूला के अंदर नाइट्रोजन था तो उसका फर्दर हमने कैसे डिटेक्ट किया एज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो वो अभी हमने आपको बताया कि आप सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने के बाद उसी सोडियम एक्सट्रैक्ट की हेल्प से आप नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन को आप कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के दौरान, दैट इज द about the optical activity. It is an experimental property. With the help of the polarimeter instrument, we can determine whether a particular compound is optically active or inactive. If we have a compound, for example, we have conene, an alkalite. If we pass the PPL through it, through their aqueous solution, we pass the PPL. If the PPL not rotate either towards the right or left hand side, but it means the compound is optically inactive. But it is found that in case of the conene, the light will rotate. और वैसे हम आपको बता दें, if the light rotate either towards the right hand side or towards the left hand side, in both of the case the compound will be optically active. Means वो active है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, मींस पीपीएल को रोटेट कर रहा है either towards the right or the left hand side, so the compound called as the optically active. Optics means light. Light here means the plane polarized light. The light whose particle oscillate only in one plane, that is the PPL. तो मींस उसी PPL को अगर राइट या लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो व्हाट इट मींस, उसके अंदर कायरल कार्बन एटम जरूर होगा। मींस द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एनी ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू द कायरल कार्बन एटम, और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द पोलरीमीटर। सिमिलरली कोनिन के केस में ये पाया गया कि इट रोटेट्स द पीपीएल टुवर्ड्स कौन सी साइड बोलो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और वो क्यों, क्योंकि इट हैज एन
कायरल कार्बन एटम। हमें नहीं पता, अभी तक हमें नहीं पता, मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के दौरान यू विल नेवर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिन। जैसे हमने ये बॉटम के अंदर ड्रा कर रखी है स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिन, आप इसको रफली ड्रा कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन का अगर क्वेश्चन आए तो आप एक्चुअल में ड्रा नहीं करेंगे। रफली ड्रा क्यों करते हैं? ताकि ये स्ट्रक्चर अगर हमारे माइंड में रहेगी एग्जामिनेशन के दौरान तो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये आंसर ठीक लिख पाएंगे। जैसे अभी हमने लिखा कोनिन इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों लिखा? क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो जिसके ऊपर हमने ये एस्ट्रिक लगा रखी है, दैट इज द कायरल कार्बन एटम, बिकॉज दैट कार्बन, ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन एटम आर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड ऑन दैट कार्बन एटम, जिसको हमने कायरल कहा। तो इस कार्बन के ऊपर आप देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। देखो एक H हो गया, दूसरा आपके प्रोपाइल ग्रुप हो गया एक साइड में, इधर देखो कार्बन है, इधर दूसरी साइड में आपके NH ग्रुप दिख रहा है। ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दैट इज द कायरल कार्बन एटम, जिसके ऊपर हमने एस्ट्रिक लगा दी। इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। हम बताएं भी गए आपको लास्ट में जाके कि किस टाइप से इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन में टेस्ट फॉर द डबल बॉन्ड। आप खुद देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप हमेशा ही रफली ड्रा करके रखें कोनिन की स्ट्रक्चर को, जैसे हमने नीचे ड्रा कर रखी है। आप इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें, अब इस पूरी स्ट्रक्चर में क्या आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नो, देयर इज नॉन सैचुरेशन। तो अब जो हमें पॉइंट लिखना है, हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन, हाउ कैन यू इलुसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिन, उसमें जो हमारा ये पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज द टेस्ट फॉर द डबल बॉन्ड। हम क्या लिखें? स्ट्रक्चर हमने रफली ड्रा कर ली, स्ट्रक्चर को देखते हुए अब हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? हम लिखेंगे देयर इज नो अनसैचुरेशन, देयर इज नो डबल बॉन्ड। तो इसलिए जो टेस्ट होंगे डबल बॉन्ड के लिए हम उनको नेगेटिव शो कर देंगे। मींस जो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के जो टेस्ट होते हैं, बोलो क्या कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर बोलो हम क्या डालें, वी ऐड द ब्रोमीन वाटर, जैसे हमने दिखा रखा है। अगर अनसैचुरेशन होती तो देखो ये कलर डिस्चार्ज हो जाता, देखो ये डिस्चार्ज हो गया ना। लेकिन जब हमने टेस्ट किया कोनिन के लिए, कोनिन को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर का ऑरेंज कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, ब्रोमीन का ऑरेंज कलर यूं का यूं आ गया। But it shows that कि compound has no unsaturation, इसके अंदर unsaturation नहीं है। मीन जो कंपाउंड की स्केलेटन है वो बोलो कैसी है कि इस टाइप्स की, देखो स्केलेटन है, एक कार्बन एटम की लंबी कोई चेन होगी। हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पता कि इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं अभी तक। हाँ, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होगा वो आगे हम दोबारा से देखेंगे कि नाइट्रोजन कहीं पे होगा। तो मीन्स ये स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, ये स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, हमें क्या पता वो स्ट्रक्चर है कैसी। फिलहाल इस टेस्ट से सिर्फ हमने ये क्लियर किया है कि इस कंपाउंड के अंदर, जिसे आप कोनिन कह रहे हैं, इट हैज नो डबल बॉन्ड, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इट शोज नो टेस्ट। जैसे हमने दिखाया अगर डबल बॉन्ड होता, ब्रोमीन डालते तो कोई रिएक्शन होती, लेकिन अब इसके अंदर ये डबल बॉन्ड नहीं है। आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, बोलो क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। दैट्स व्हाई द ब्रोमीन do not react with that particular compound having the no double or the triple bond, means no reaction. Similarly other reagent भी हैं आपके, Beer's reagent, alkaline KMnO4, Tilden's reagent, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डिटरमिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब बड़े ध्यान से देखें इस कोनिन की स्ट्रक्चर को, जो हमने रफली ड्रा कर रखी है नीचे, क्या इसको देखते हुए आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, नाइट्रोजन तो आपको दिख रहा है। क्या इससे ये पता चला कि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन है? इसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने शुरू में देख लिया था, C8H17N, means there is no oxygen atom in the molecular formula, means no oxygen is present in their structure। तो मीन्स इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें क्या पता चला कि जैसे कि जो मोलिकुलर फार्मूला इज, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कोनिन इज C8H17N, which shows that there is no oxygen atom, means we have no requirement to do the test of all the functional group which contain the oxygen। हमें उन किसी भी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस कंपाउंड में नहीं। मींस वो कंपाउंड, वो फंक्शनल ग्रुप कौन है? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होगा प्रेजेंट, फिनोलिक OH नहीं होगा प्रेजेंट, एल्कोहलिक ग्रुप OH नहीं होगा प्रेजेंट, आपके एल्डिहाइड कीटोन ये भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ईथर ग्रुप वो नहीं होगा प्रेजेंट। मींस ऑल सच फंक्शनल विल बी एब्सेंट। वो सारे फंक्शनल ग्रुप, ऑल द फंक्शनल ग्रुप व्हिच हैव द ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर will be absent because the formula of the conin is C8H17N, but as their formula is C8H17N because it contains the nitrogen, और उसके लिए हमने पहले बताया भी था कि एक्स्ट्रा एलिमेंट का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रो ग्रुप NO2 वो तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो एमीन हो सकते हैं, NH2 ग्रुप में भी प्रेजेंट,
NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे, NO2 नहीं हो सकता ना। बोलो क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके मोलिकुलर फार्मूला के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, C8H17N है। तो हमें नाइट्रो का टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? एमीन्स का टेस्ट करेंगे। एमीन के काफी टेस्ट हैं जो आप लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं, ये पता लगने के लिए कि एमीन हमारा प्राइमरी है। अगर मान लीजिए हमारा प्राइमरी एमीन होता तो बोलो कौन कौन से आपने पढ़ रखे हैं? आपने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास एक टेस्ट होता है ना, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ प्राइमरी ग्रुप होता, देखो ऐसे CH2NH2 होता, मतलब कार्बन की लंबी चेन होती, इसके ऊपर कहीं पे भी NH2 होता, और उसके अंदर हम क्या डाल दें? बोलो आप इसके अंदर डाल देंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इन प्रेजेंस ऑफ बेस KH, तो आपकी रिएक्शन हो जाती, फाउल स्मेल आती, आइसोसाइनाइड बन जाते। देखो इस टाइप से NC, या अब CH3NH2 के साथ सेम रिएजेंट डाल के करते तो बोलो क्या बनता? CH3NC। देखो ऐसे बन जाता है, फाउल स्मेल होती है इसकी, आइसोसाइनाइड की बोलो क्या होती? फाउल स्मेल। लेकिन ये पाया गया कि इफ यू ऐड, कि हमने क्या किया कि जैसे ही आपने जो कोनिन है, देखो ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पे कोनिन का, कोनिन को के अंदर आपने क्या डाला? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज द KH। आपने जब रिएक्शन की, नो रिएक्शन अकर, नो रिएक्शन मींस प्राइमरी एमीन्स आर एब्सेंट, जो प्राइमरी एमीन्स हैं वो एब्सेंट हैं, मींस NH2 ग्रुप इज नॉट देयर, NH2 ग्रुप इज नॉट देयर। फिर हम क्या करें? हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है दैट इज द कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखो ये तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन थी, दैट इज द कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट इज नेगेटिव व्हिच शोज दैट प्राइमरी NH2 ग्रुप इज, प्राइमरी एमीन आर एब्सेंट। तो उसके बाद हम क्या करें? और भी तो हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज द हिंसबर्ग टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, लेबोरेटरी मेथड। तो हिंसबर्ग मेथड आप अप्लाई कर लेते हैं। हिंसबर्ग मेथड में आपने क्या पढ़ा है? अगर हिंसबर्ग मेथड में आप क्या से पढ़ते थे कि अगर आपके पास एक प्राइमरी एमीन है, आपके पास सेकेंडरी एमीन है, आपके पास देखो टर्शियरी एमीन है। अगर 3 टाइप के आपके पास एमीन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ड्रा भी करते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ आपको समझाने के लिए CH3NH2। सेकेंडरी एमीन होता तो हम लिखते CH3NH, और मान लीजिए CH3 हमने लिख दिया। टर्शियरी होता तो इसके ऊपर आप 3 CH3 ग्रुप मान लीजिए लगा दी, इथाइल ग्रुप लगा दे, कोई भी लगा दें, दैट इज द टर्शियरी एमीन। इसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था? हिंसबर्ग रिएजेंट था कि एक बेंजीन है जिसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं आप, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं PHSO2Cl, बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज द हिंसबर्ग रिएजेंट। आपने ये डाला, देखो अगर NH2 प्राइमरी एमीन होता तो यहाँ से रिएक्शन देखो ऐसे हो जानी चाहिए थी। सिमिलरली अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे हम, देखो PHSO2Cl, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी एमीन है तो नाइट्रोजन के पास एक H है, तो भी रिएक्शन देखो हो जाएगी। टर्शियरी एमीन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तो आपने फिनाइल यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इफ द रिएक्शन अकर्स, इफ द रिएक्शन अकर्स, व्हाट इट मींस, अगर रिएक्शन हो जाती है तो प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है। तो ऐसा ही हमने किया, पहले हमने कार्बाइल एमीन टेस्ट किया था सबसे पहले, तो हमने देखा देयर इज नो रिएक्शन, व्हाट इट शोज, प्राइमरी एमीन इज एब्सेंट, तो प्राइमरी एमीन आपके एब्सेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हिंसबर्ग मेथड में प्राइमरी एमीन सेकेंडरी टर्शियरी के लिए जो टेस्ट होता है, ओनली द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन शोज द पॉजिटिव टेस्ट, shows the positive test initially with the Hinsberg reagent। और जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब लेके, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया? आपका कंपाउंड दैट इज अ कोनिन। हमने इसके अंदर बोलो क्या लिया? यहाँ पे कोनिन लिया आपने, और कोनिन लेके फिर आपने क्या डाला इसमें? हिंसबर्ग रिएजेंट डाला आपने। बोलो कौन डाला इसमें? HR का मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट आपने डाला। रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन अकर्स मींस इधर द प्राइमरी और द सेकेंडरी एमीन, लेकिन जैसे कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन से हमने पहले प्रूव कर दिया कि प्राइमरी एमीन तो है नहीं, तो व्हाट इट शोज मींस सेकेंडरी एमीन आर प्रेजेंट। लेकिन फर्दर भी हम इसके लिए इसकी इंटीमेशन हम कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं। देखो कैसे कि CH3 देखो N, ये CH3, हम फर्दर टेस्ट के बारे में बताएं। और यहाँ पे आपने लिख दिया देखो SO2 और PH, फिर आपने यहाँ पे व्हाइट PPT बन जाते हैं। बोलो क्या बन जाते हैं? व्हाइट PPT। सिमिलरली अगर प्राइमरी एमीन होता तो भी व्हाइट PPT ही बनते। देखो इस टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो NH, और ये बोलो कौन? SO2 और ये PH, यहाँ पर भी व्हाइट PPT ही बनने थे, व्हाइट PPT। लेकिन फर्दर होगा क्या कि वी ऐड द QH इन इट, QH डाल देंगे। तो प्राइमरी एमीन में क्या होता है? देखो नाइट्रोजन के पास एक H अभी और बाकी है,
तो ये H और यहाँ से OH, देखो वाटर निकल गया, मीन्स क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाना चाहिए। बोलो क्या मिल जाना चाहिए? क्लियर सॉल्यूशन। लेकिन क्या हुआ, हमारे क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला। जैसे आपने KH, क्योंकि नाइट्रोजन के पास H नहीं, नो रिएक्शन, नो फर्दर रिएक्शन में जो ये व्हाइट पीपीटी बने थे, व्हाइट पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड। बोलो क्या हुआ? व्हाइट पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड, तो सेकेंडरी एमीन। तो बोलो कौन है सेकेंडरी एमीन? हमने कंफर्म कर दिया कि जो हमारे पास जो कोनिन है उसके पास सेकेंडरी एमीन है। और ये आपने कैसे बताया? आपने क्रैम नहीं किया, आपने पहले सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, ये देखो रफली स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा है NH है, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इट मीन सेकेंडरी एमीन ग्रुप प्रेजेंट है आपके कोनिन के अंदर। तो उसी बात को अब हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे आपने कोनिन लिया, कोनिन के अंदर आप कार्बाइल एमीन रिएक्शन करेंगे और आप लिख देंगे नो रिएक्शन मींस प्राइमरी एमीन ग्रुप इज एब्सेंट। फिर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट की का मेथड आप यूज करेंगे, दैट इज द टेक्निक नंबर B। फिर आपने क्या किया कि आपने दोबारा से देखो कोनिन लिया, ध्यान से देखिए आप लिखेंगे कैसे। आपने कोनिन लिया और कोनिन के अंदर आपने क्या डाला? हिंसबर्ग रिएजेंट आपने डाला, देखो ऐसे। और यहाँ पे आपके क्या बन गए? बोलो व्हाइट पीपीटी। फिर आपने इसमें बोलो क्या डाला? KH। फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? व्हाइट पीपीटी अनडिसॉल्व्ड, व्हाइट पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड, व्हाइट पीपीटी रिमेन, बोलो क्या लिख देंगे? रिमेन अनडिसॉल्व्ड, while PPT remain undissolved, but it shows secondary amine group is present. सेकेंडरी एमीन ग्रुप इज प्रेजेंट। ये जो और चीजें मैंने आपको नीचे बताई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी। देखो ये सारी चीजें जब आप स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन करते हैं तो उसके दौरान आपको ये जितना काम, देखो मैंने आपको साइड में देखो ये करके दिखाया, ये आपको नहीं करना। ये सिर्फ अगर आप भूल ना गए हो कि हिंसबर्ग मेथड था क्या, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि देखो किस तरह से सेकेंडरी जो एमीन है उनके अंदर व्हाइट पीपीटी बनते हैं और फिर वो अनडिसॉल्व्ड रहते हैं। तो लेकिन आप अपनी कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर आप कैसे लिखेंगे? सिर्फ इतना जितना मैंने अभी आपको लिख दिया कि टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और वो फंक्शनल ग्रुप कौन हो सकते हैं? मैंने आपको बताया नाइट्रो ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, फार्मूला के अंदर C8H17N है। तो इसलिए आपने किसका टेस्ट किया? एमीन का किया। ये देखने के लिए एमीन प्राइमरी है सेकेंडरी, आपने पहले कार्बाइल एमीन टेस्ट किया, देखो E पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद उससे सिर्फ ये पता चला कि प्राइमरी जो एमीन्स हैं वो आपके अब्सेंट हैं। बोलो क्या है? प्राइमरी एमीन क्या है? बोलो आपके अब्सेंट है। उसके बाद आपने हिंसबर्ग मेथड देखा कि ये देखने के लिए प्राइमरी ग्रुप तो अब्सेंट है तो सेकेंडरी है, टर्शियरी एमीन ग्रुप प्रेजेंट है आपके कोनिन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिर आपने क्या किया? हिंसबर्ग मेथड अप्लाई किया, कोनिन के अंदर फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला आपने, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। व्हाइट पीपीटी आ गए। व्हाइट पीपीटी आना ये प्रूव करता है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हमने ऊपर ही शो कर दिया कि दे आर एब्सेंट। फर्दर KH डाला, तो KH डालने से व्हाइट पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड व्हिच शोज दैट सेकेंडरी एमीन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो मींस आपकी जो भी देखो ये स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर NH, देखो ये NH, दैट ग्रुप इज प्रेजेंट, ये ग्रुप प्रेजेंट है। यहां तक कि स्केलेटन का पता है, हमें ये भी नहीं पता कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है कोनिन की या ये साइक्लिक है, अभी तक हमें इस चीज का नहीं पता। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन भी किया। तो देखो आपके एमीन हो सकते थे। फिर अब हम हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया, फर्दर इस चीज को हम कंफर्म कैसे करें कि सेकेंडरी एमीन ही प्रेजेंट है। तो फर्दर हमने टेस्ट किया कि आपने कोनिन लिया और उसमें क्या डाला? मिथाइल आयोडाइड। तो मींस द कोनिन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द CH3I, एक ही मोल ऑफ CH3I के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देता है? इट गिव्स द N मिथाइल डेरिवेटिव। जैसे हमने बताया था ना कि जो स्ट्रक्चर है इसकी, बोलो कैसी स्ट्रक्चर है, अभी पीछे हमने सीखा था हिंसबर्ग रिएजेंट से, हिंसबर्ग मेथड से कि सेकेंडरी एमीन ग्रुप इज प्रेजेंट। उसको फर्दर कंफर्म किया गया कैसे? कि कोनिन के अंदर हमने जब 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड डालते हैं तो वी गोट द N मिथाइल डेरिवेटिव्स which shows that the conine has the secondary amine group, it has the secondary nitrogen atom। उसके बाद फर्दर हमने अगला टेस्ट क्या किया? हमने कोनिन को लिया और सबसे पहले हमने उसमें क्या की? जिंक डस्ट डिस्टिलेशन की। देखो ये रफ स्ट्रक्चर आप अपने पास जरूर रखें, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन की, और एक नॉन कंपाउंड मिला हमें दैट कॉल्ड एज द कोनरीन, दैट इज अ नॉन कंपाउंड, नॉन स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर नॉन है। फर्दर क्या किया? हमने ऑक्सीडेशन भी किया पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और जब ऑक्सीडेशन किया तो व्हाट वी ऑब्टेन द अल्फा कोलिनिक एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH। तो व्हाट इट शोज दैट, इससे ये पता चला कि जो कोनिन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। उसके अंदर एक तो आपके
piperidine या pyridine ring present है. There is a pyridine or the piperidine ring is present and the substituent is present at the alpha position. क्योंकि alpha picolinic acid में देखिए नाइट्रोजन के बाद जो ये alpha position है उसी के ऊपर कौन present है? CH group is present. और वो CH group कहाँ से आया? What it means वहां पे कोई ना कोई substituent जरूर है. देखो ये जो स्ट्रक्चर है या तो ये होगी, देखो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दी. बोलो कौन सी स्ट्रक्चर बनाई? यहाँ पे ये पिपरिडिन रिंग बना दिया और उसके बाद ये अल्फा पोजीशन के ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो ये पार्ट ही हमने क्यों बनाया? देखो वो इसलिए कि जो आपकी स्ट्रक्चर बनी इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तो आ गए. फार्मूला क्या था? बोलो फार्मूला जल्दी से बताएं क्या था? C8H17N. दैट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कोनिन, जो हमें पहले से पता है. तो 5 कार्बन आ गए कि इसमें नाइट्रोजन आ गए, आपके यहाँ पे H भी आ गया. तो उसके बाद आपकी ये स्ट्रक्चर हमने साइड में ड्रा कर दी. मतलब 5 कार्बन तो यूज हो चुके हैं रिंग के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि इसके अंदर या तो पिपरिडिन रिंग है या pyridine रिंग है. तो पिपरिडिन रिंग के बेसिस के ऊपर हमने बताया. तो बाहर कौन बच गया? बाहर आपके बच गया, बोलो कौन? प्रोपाइल ग्रुप. या प्रोपाइल ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं. दूसरा पॉइंट ये कि इसमें पिपरिडिन रिंग ही क्यों है? वो इसीलिए है पिपरिडिन रिंग. अगर हम ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते तो हमारे पास एक टेस्ट होता है. कौन सा टेस्ट होता है? कि आप कंपाउंड ले उसको हीट करें. अगर आपके पास पिपरिडिन रिंग है तो उसका हम पता लगा सकते हैं. लेकिन फिलहाल जो आपकी पिपरिडिन रिंग है हमने उसको ड्रा किया पिपरिडिन रिंग, और बाहर जो आपके जितने कार्बन बच गए, क्योंकि 3 कार्बन बच गए, वैलेंसी कंप्लीट कर दी. या तो वो आपके सिंपल प्रोपाइल ग्रुप है या वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर जरूर है. ठीक, किसकी? आपकी कोनिन की. तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेस्ट, दैट इज द heating of the conin with the zinc dust followed by reaction with the oxidizing agent, that is the potassium dichromate in the acidic medium, as we obtain the final product as the alpha picolinic acid, from where we conclude that there is a piperidine ring and there is a side substituent at the alpha position. तो ये alpha position के ऊपर हमने side substituent लगा दिया, क्योंकि 5 कार्बन तो रिंग में यूज हो गए, 3 कार्बन का ही सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो 3 कार्बन का हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया. तो 3 कार्बन की जो चेन है वो 2 टाइप से आप लिख सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग की फॉर्म में. अगर स्ट्रेट चेन बनाई तो स्ट्रक्चर नंबर 1, अगर ब्रांचिंग की फॉर्म में दिखाया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप की फॉर्म में दिखाए तो स्ट्रक्चर नंबर 2. अब दोनों में से ठीक कौन सी है? तो उसके लिए फर्दर हमने क्या किया? हमने HI के साथ रिएक्शन की. वी हीट द कोनिन विद द HI के साथ जैसे हम हीट करते हैं तो ये पाया गया, वी गॉट द N ऑक्टेन. हमें N ऑक्टेन मिला. बोलो हमें कौन मिल गया? यहाँ पे N ऑक्टेन. अब हम क्या करेंगे? जो 2 स्ट्रक्चर अभी हमने इल्यूसिडेट की थी कि आउट ऑफ द 2 स्ट्रक्चर 1 में बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कोनिन. देखो पहली स्ट्रक्चर क्या थी? पहली स्ट्रक्चर ये जो भी हमने एस्टेब्लिश की थी अभी, अगर उसके अंदर हम HI डाल दें तो व्हाट वी ऑब्टेन्ड? वी ऑब्टेन N ऑक्टेन. हमें N ऑक्टेन मिलता है इस टाइप से. और वास्तविकता में जब हमने कोनिन को हीट किया था HI के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, अमोनिया लॉस हुआ था, हमें क्या मिला था? यही N ऑक्टेन मिला था. लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 2 ले लें जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, अगर हम उसको हीट करते हैं HI के साथ तो हमें क्या मिलेगा? अमोनिया तो देखो फिर भी लॉस होगा, लेकिन हमें मिलेगा क्या? वी विल गेट, बोलो क्या? आइसो ऑक्टेन. हमें आइसो ऑक्टेन मिलेगा. तो आउट ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर 1 and 2, दैट स्ट्रक्चर विल बी द करेक्ट, व्हिच विल गिव N ऑक्टेन. क्योंकि इन रियलिटी जब हमने कोनिन को हीट किया था किसके साथ? बोलो HI के साथ, तो हमें क्या मिला था? N ऑक्टेन हमें मिला था. और N ऑक्टेन हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 से मिलता है. तो उसी से प्रूव हुआ कि स्ट्रक्चर 1 इज करेक्ट एंड स्ट्रक्चर 1 इज रॉन्ग. स्ट्रक्चर 1 बोलो क्या है? रॉन्ग है. क्लियर हो गया इतना? उसके बाद फाइनल स्टेप हमारी क्या होती है कि हम स्ट्रक्चरल जो भी स्ट्रक्चर अब हमने ऑब्टेन कर ली, अब हम उसकी सिंथेसिस देखते हैं. तो लास्टली द स्ट्रक्चर प्रपोज्ड by degradative methods is now been proved by its synthesis. तो सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लिया अल्फा पिकोलिन. हमने क्या लिया? अल्फा पिकोलिन. अल्फा पिकोलिन के अंदर अगर आप देखेंगे, बड़े ध्यान से देखना, एक बेसिक फैक्ट आपको बताते हैं जो आपने सीखा है. मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता, आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N होता. देखो इसी टाइप से C ट्रिपल बॉन्ड N हमने दिखा दिया. हमारे पास एक कार्बन होता और उस कार्बन के ऊपर देखो आगे NO2 ग्रुप लगा हुआ होता. तो ये ग्रुप हो गया. यहां से देखो ये ग्रुप हो गया. इस ग्रुप से जो अगला जो भी कार्बन होता है दैट कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन हियर इज आल्सो द अल्फा कार्बन. और उन अल्फा कार्बन के ऊपर अगर H हो जाए प्रेजेंट, दैट कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोजन.
and these alpha hydrogen are always reactive, always acidic in nature, which can be lost in the form of the H positive ion. Similarly आप देखें ध्यान से, ये जो ग्रुप है अल्फा पिकोलिन के अंदर जो हमने रिएक्टेंट लिया, इसके अंदर जो ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज द C डबल बॉन्ड N। जैसे हमने बताया C ट्रिपल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड O, देखो ये जो ग्रुप था उसी टाइप से ग्रुप है, उसे नेक्स्ट जो कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो CH3, इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिख दें CH2 देखो H करके, मींस दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर एसिडिक। अगर हम इसमें कोई बेस डाल दें, एनी बेस, एन ब्यूटाइल लिथियम डाल दें, यहाँ पे हमने फिनाइल लिथियम ले लिया, तो इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब ये बेस क्या करेगा, बोलो बेस क्या करेगा। बेस वो स्पीसी होती है, द नेगेटिवली चार्ज स्पीसी व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो किसको दिए, इस H को दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कार्बन के पास आ जाएंगे, कार्बन आयन बन जाएगा। C नेगेटिव के पास पॉजिटिव काउंटर आयन कौन रहेगा, Li पॉजिटिव, देखो आपका बन गया, दैट इज द लिथिएटेड अल्फा पिकोलिन। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें सिंथेसिस करनी है। यहाँ पे हमें कोई ग्रुप लगाना है, हम पहले ही देख चुके हैं, जो स्ट्रक्चर है वो हमारे माइंड के अंदर रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो फाइनल स्ट्रक्चर जहां तक देखो हमें पहुंचना है, देखो यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, और अल्फा पोजीशन के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है, दैट इज ए प्रोपाइल ग्रुप। देखो CH2 CH2 और CH3, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिन। तो ये स्ट्रक्चर हम कैसे ऑब्टेन करें, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो Li है और CH2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ग्रुप हमें चाहिए, दैट इज इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप कहाँ से आए, तो उसके लिए हमने एल्काइल हैलाइड लिया। ऐसा एल्काइल हैलाइड लें जिसके अंदर इथाइल ग्रुप हो, तो इस कार्बन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, Br के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो यहाँ पे CH2 नेगेटिव और I पॉजिटिव है, इसमें जो ये पार्ट है, देखो ये CH2 नेगेटिव जो पार्ट है, इट विल एक्ट हियर एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एल्काइल हैलाइड आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये जो CH2 नेगेटिव है, ये अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो इस कार्बन को दिए, यहाँ से जो यहाँ पे देखो हमने चार्ज, सॉरी ये गलत लगा दिया, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और Br के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो ये इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, देखो Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, और आपके पास देखो ये ग्रुप यहाँ पे लग गया। कौन सा ग्रुप लग गया, C3H7, देखो ये ग्रुप यहाँ पे लग चुका। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे पास ये कोनाइन बन गया और इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर क्या है, डबल सिंगल डबल, हमें इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है सर। तो आपने क्या डाला, रिडक्शन कर देंगे रिंग की, सोडियम इथेनॉल, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आप जानते हैं ना C2H5O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव। सोडियम क्या करता है बोलो, ग्रुप 1 एलिमेंट है, Na पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा बोलो, ये जो H पॉजिटिव है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बोलो क्या बन गया, ये H, और एडिशन ऑफ H इज इक्वल टू बोलो क्या, रिडक्शन, बोलो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी, जितने भी डबल बॉन्ड थे हाइड्रोजनेशन हो गई, रिडक्शन हो गई, और हमें कोनिन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, बोलो क्या ऑब्टेन हो गया हमें, कोनिन। सो दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द कोनिन। तो लास्टली जितने भी आपके स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन आप और भी कंपाउंड्स के पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे जो लास्ट स्टेप होती है वो हमें उस कंपाउंड की सिंथेसिस लिखनी होती है। तो इस स्टेप से आप समझकर याद करेंगे सिंथेसिस को, हर स्टेप को। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ऑफ कोनिन। थैंक यू।